راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں ریبا نعیم، میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہیں کہ اس نئے سال میں پھر ایک بار آپ کے ساتھ مل کر پروگرام راہ زندگی کے مختلف سیگمنٹس کو سننے کا موقع مل سکا۔ گو کہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں اس نئے سال کو، لیکن ابھی بھی ہمارے دلوں میں اس نئے سال کے لیے جو ہم نے ریزولوشنز بنائی ہیں، جو اچھی باتیں ہم نے سوچ رکھی ہیں اور جو اچھے منصوبہ جات ہم نے بنا رکھے ہیں، ابھی تک ہمارے دل میں جوش و خروش اسی طرح سے موجود ہے اور امید ہے کہ اسی طرح سے ہم نے جن نیکیوں کو اپنے دل میں ٹھان رکھا ہے یا جو اچھے کام ہم نے سوچ رکھے ہیں ان پر ہم ضرور پورے سال میں کاربند رہیں گے۔ آنے والے سال کے بارے میں یقیناً ہمیں اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ آنے والے وقت کے بارے میں اتنا پریشان رہتے ہیں کہ وہ اپنے آج میں بھی خوش نہیں رہ پاتے۔ تو ہمیں اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ضرور جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن مستقبل کی فکر میں اپنے حال کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک میرے سامنے بہت ہی خوبصورت انتخاب ہے جسے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی پروگرام کے آغاز میں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر حال میں خوش رہو، جو چہرہ پاس نہ ہو اس کی آواز میں خوش رہو، کوئی روٹھا ہو تم سے اس کے انداز میں خوش رہو، جو لوٹ کر نہیں آنے والے ان لمحوں کی یاد میں خوش رہو، کل کس نے دیکھا ہے اپنے آج میں خوش رہو۔ تو اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام کا آغاز خدا ہی کے پاک نام سے یعنی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا، بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ یقیناً وہ لوگ مبارک ہیں جو خداوند خدا پر یعنی زندہ خدا پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر طرح کے حالات میں حقیقی مدد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں ایسے حالات اور واقعات پر غور کرتے ہیں جب ہمارے خدا نے ہمیں سنبھالا، ہماری مصیبتوں سے، ہماری بیماریوں سے، پریشانیوں سے اس نے رہائی دی، تو پھر یقیناً ہمارے منہ، ہمارے دل اس کی حمد و ثنا سے، اس کی ستائش سے بھر جاتے ہیں، اور ہم اس بات کا پورا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات کو تجربے سے ہم جان جاتے ہیں کہ چھڑانے والا اور بچانے والا اور سنبھالنے والا خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور تسلی بخش کلام ہم نے سنا بائبل مقدس سے۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، لیکن آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی اور آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں اس پتے پر، پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال اور SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 اور بہت بہت شکریہ ان تمام لسنرز کا جنہوں نے ان سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیا اور ہمارا حوصلہ بڑھایا، اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچایا۔ تو آئیے ان کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے سامنے جو پیغام ہے وہ ہے سلیمان انصاری کا۔ آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق کے خوبصورت انداز میں سنا، آپ نے نئے سال کی مبارکباد دینے سے پروگرام کا آغاز کیا، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت کے بعد میرے میسج پڑھنے سے آغاز کیا، تفصیل سے پڑھا، بہت خوشی ہوئی، اور میرے پڑوسی دوست شیوا رام اور حافظ قمر الدین کے نام بھی شامل تھے، خوشی ہوئی، اور صحت سب کے لیے میں گردوں کے بارے میں سنا، اور غزل ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح سن کر اچھا لگا، اور چشم بینا میں واقعہ سنا، دعا بھی کی، آمین۔ بہت بہت شکریہ سلیمان انصاری، آپ نے اس مختصر لیکن بہت ہی جامع پیغام میں ہر چیز کے بارے میں لکھ ڈالا، اور بہت بہت شکریہ
کہ आपने अपना फीडबैक हम तक पहुंचाया। जिस तरह आपको अपना मैसेज सुनकर खुशी हुई और उसी तरह से जब आपके खतूत और आपका फीडबैक हम तक पहुंचता है तो हमें भी खुशी होती है। आप हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं सुलेमान अंसारी। इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहिएगा और इसमें शामिल होते रहिएगा। राय वलायत साकी आप ननकाना साहिब से लिखते हैं कि प्रोग्राम सुना, बाजी रिबा नईम साहिबा की आवाज में और सिलसिला तंज़ो तबस्सुम भी बहुत अच्छा लगा। सेहत की बातें, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बातें थी और फिर मौसीकी का इंतखाब भी बहुत प्यारा और खूबसूरत था। मेरी तरफ से पूरी टीम को सलाम। क्या बात है, कमाल का प्रोग्राम है, जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया राय वलायत साकी, आपकी सारी मोहब्बत के लिए, सारी पजीराई के लिए और इस हौसला अफजाई के लिए जो आपने इन खूबसूरत अल्फाज में की है। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल आप ननकाना साहिब से लिखते हैं, अल्फाज वो नहीं जो दिल से निकले बल्कि अल्फाज तो वो हैं जो दिल में उतरे। जी मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल, आपके इन खूबसूरत अल्फाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि अल्फाज वो ही दिल में उतरते हैं जो दिल से निकलते हैं। तो यकीनन जब हम दिल से किसी के लिए कुछ कहते हैं, किसी के लिए कोई अच्छी दुआ निकालते हैं, अच्छे अल्फाज अपने दिल से निकालते हैं, तो वो ही अगले के दिल में उतरते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत ख्याल के लिए और इन खूबसूरत अल्फाज के लिए। इसी तरह से आप मुख्तलिफ तहारीर भेज सकते हैं ताकि हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साकिब। असद मुराद आप लिखते हैं, आज का शानदार और मुख्तलिफ रंगों से भरा हुआ प्रोग्राम सुनकर बहुत सुकून मिला और रीबा नईम साहिबा की खूबसूरत आवाज़ और बाजी रीबा नईम साहिबा, हम अपनी फैमिली के साथ खैर व आफियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह खुश होंगी। तिलावत कलाम मुक़द्दस और हमदिया गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा और इसके बाद SMS से भरा हुआ प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। लेकिन आईना के बारे में दिलचस्प बातें सुनकर दिल बहुत ही खुश और हैरान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया असद मुराद आपके इस खूबसूरत खत के लिए, इन खूबसूरत अल्फाज के लिए। आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं। अच्छा लगा ये सुनकर कि आप सब खैरियत से हैं और जी हाँ, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, खुश हैं और आपके लिए भी हम हमेशा दुआगो रहते हैं कि खुदा ताला आपको भी ढेरों खुशियां अनायत फरमाए, आमीन। और आपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स का जिक्र किया, आपको पसंद आए, अच्छे लगे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहिएगा और अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा। जिशान सरवर सयाल और सिदरा सरवर सयाल आपने हमें ये खत लिखा है, बहुत ही तफसीली खत। ये सयाल शॉर्ट वेव लिसनर्स क्लब की तरफ से आपने लिखा है। आपने कहा कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआओं से मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। हमारी दुआ है कि खुदा आप सबको अपने फजल की घनी और ठंडी छांव में महफूज रखे, आमीन। ये खुलूसनामा मेरी तरफ से इस साल 2021 का आखिरी मरासिला है। दिसंबर साल का आखिरी बरस तो हो सकता है लेकिन हमारी मोहब्बतें नए साल में भी बरकरार रहेंगी। वक्त के इस अहम मोड़ पर वतन अजीज को नाजुक सूरत हाल दरपेश है। उम्मीद और खर्शात की दबीज धुंध है जिसने हर मुहिब वतन शहरी को अपने हसार में ले रखा है। आप कहती हैं कि जो वाकिफ हैं इस हाल से वो जानते होंगे कि कौम की उम्मीदें भर आएंगी या बदतरीन खदशात बनकर उन्हें निकल जाएंगी। खुशी की बात यह है कि उम्मीदें बड़ी तवाना हैं और खदशात नातमा, और अवाम की अक्सरियत पर उम्मीद है कि साल 2022 इनके लिए कामयाबी और सुकून की नवीद लाएगा और दुआ है कि हम सब की उम्मीदें पूरी हों और खुदा करे कि नया साल सबको रास आए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके नए साल को लेकर इन खूबसूरत अल्फाज के लिए और इन खूबसूरत ख्यालात और नेक ख्वाहिशात के लिए। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे, ज़िशान सरवर सयाल और सिदरा सरवर सयाल, और आप इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल भी होते रहेंगे। खुतूत और SMS के सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। और नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है हम सब का बहुत ही मनपसंद, जी हाँ, ड्रामा चिरागेरा। और आप जानते हैं कि हम हजरत सुलेमान नबी के हालात जिंदगी पर मबनी ड्रामा सुन रहे हैं। आज इसमें होगी 7वीं किस्त, जिसमें हम सुनेंगे कि किस तरह से इसराइल की बादशाहत 2 हिस्सों में मुनक़सिम होगी। सलामती हो रबाम बादशाह। सलामती हो जनाब, हम एक दरखास्त लेकर हाजिर हुए हैं। कहो युरबाम, क्या बात है? हुजूर, आप जानते हैं कि सुलेमान बादशाह के वक्त कौम ने सल्तनत को शानो शौकत देने के लिए किस कदर मेहनत की और कितनी कुर्बानियां दी। ये कौन नहीं जानता युरबाम, कहो, कहना क्या चाहते हो? जनाब, आपके बाप सुलेमान बादशाह ने हमारा जुआ बहुत सख्त कर दिया था और ये हाल अब भी है। खूब बोल लेते हो युरबाम, लेकिन मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। क्या चाहते हैं ये सरदार और बुजुर्ग? जनाब, लोगों से बहुत सख्त काम लिया जाता है, बेगार में पकड़ लिया जाता है और फिर शाही इमारतें और किले बनाते बनाते उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। आपके मनसबदार अब लोगों पर बहुत जुल्म करने लगे हैं जनाब।
لوگ لگان نہ دے سکے تو زمینیں چھین لی جاتی ہیں. سختیاں بہت بڑھ گئی ہیں جناب. تو تم یہ چاہتے ہو کہ شاہی نظام اب تبدیل کر دیا جائے؟ نہیں جناب. تو پھر کیا ہے؟ جناب ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جوا جو آپ کے باپ سلیمان نے بھاری کر دیا تھا اب آپ اسے ہلکا کر دیں. صرف اتنی سی بات جناب کہ قوم پر اب زیادہ سختی نہ کی جائے. لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے جناب. سنو، میں اس معاملہ میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا. اس پر سوچنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے. تم 3 دن کے بعد آنا، پھر میں اپنا فیصلہ دوں گا. روبام بادشاہ کے دربار کے بزرگوں اور سرداروں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر آج تو اپنے لوگوں کی بات مان لے اور ان کے ساتھ نرمی کرے تو وہ ہمیشہ تیرے خادم بنے رہیں گے. روبام بادشاہ نے اپنے دوستوں اور ان ساتھیوں کا بھی مشورہ لیا جو اس کے ساتھ پلے اور بڑھے تھے. تیسرے دن یربام اور اس کے ساتھی پھر روبام بادشاہ کے پاس آئے. بادشاہ سلامت، یربام اور اس کے ساتھی پھر حاضر ہوئے ہیں. ان کو حاضر کرو محافظ. ربام بادشاہ، ہم آپ کے حکم کے مطابق تیسرے دن آپ کا فیصلہ سننے کے لیے حاضر ہیں. سنو یربام اور اسرائیل کے سرداروں، ہمارا فیصلہ غور سے سنو. تمہارا مطالبہ بالکل بے بنیاد اور فضول ہے. ہم حکومت کے انتظام کو تبدیل نہیں کر سکتے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میرے باپ نے تمہارا جوا سخت اور بھاری کر دیا تھا تو سن لو، میں تمہارا جوا اور زیادہ بھاری کروں گا. یاد رکھو، میرا باپ تو تم کو کوڑے مار کر ٹھیک کرتا تھا، پر میں تمہیں بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا. اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو. اب تم جا سکتے ہو. مجھے کہیں اور جا کر بھی کام کرنا ہے. یہ تو سراسر ظلم ہے. اس کا تو یہی مطلب ہے کہ داؤد اور سلیمان کی اولاد پر ہمارا کوئی حق نہیں. یربام، بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ خاموش ساتھیو، یہاں بات کرنا مناسب نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. بادشاہ سلامت، ربام ایک قاصد آیا ہے. قاصد؟ اسے حاضر کرو سپاہ سالار بنایا. بادشاہ سلامت، اسرائیل نے بغاوت کر دی ہے اور میں کیا کہا؟ بغاوت کر دی؟ کس نے بغاوت کی ہے؟ صاف بتاؤ خادم. سب لوگ باغی ہو گئے ہیں جناب. انہوں نے یربام کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے. یربام کو بادشاہ بنا لیا ہے؟ ہاں جناب، لوگوں نے بیگاریوں کے نگران ادورام کو سنسار کر دیا ہے. یہودا اور بنیامین کے قبیلوں کے علاوہ سب قبیلوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے. سب قبیلوں نے بغاوت کر دی ہے؟ اوہ، یہ کیا ہوا؟ ہمیں اب کچھ کرنا چاہیے بادشاہ سلامت، ورنہ باغی یہاں سکم میں بھی پہنچ جائیں گے. ہمارا اب یہاں رکنا مناسب نہیں. ہم ابھی یروشلم کو جائیں گے. سنو سپاہ سالار بنایا، اپنے سارے آدمیوں کو فوراً یروشلم پہنچنے کے لیے حکم دو. ہم باغیوں سے نپٹنے کے لیے وہیں جا کر تیاری کریں گے. روبام بادشاہ، یہودا اور بنیامین دونوں قبیلوں سے تقریباً 2 لاکھ جنگی مرد مل گئے ہیں. ہماری فوج اب ہر طرح سے لیس ہے بادشاہ سلامت. بہت خوب سپاہ سالار بنایا اور عزریہ، ہم کل صبح صبح ہی باغیوں پر چڑھائی کر دیں گے. رہبام! ہیں؟ مجھے کس نے آواز دی ہے؟ کون ہو تم بوڑھے آدمی؟ بادشاہ سلامت کو اس طرح کیوں بلا رہے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ رک جاؤ بنایا، کوئی بزرگ ہے، شاید کوئی اچھی خبر دے. یہاں آ جاؤ بزرگ. سلامتی ہو ربام بادشاہ. میرا نام سمیہ ہے. میں تیرے لیے اور یہودا اور بنیامین کے قبیلوں کے لیے خدا کا پیغام لایا. خدا کا پیغام؟ کیا پیغام ہے بزرگ سمیہ؟
क्या मैं बागियों को खत्म कर लूंगा? जल्दी बताओ बुजुर्ग, इसराइल की सल्तनत सख्त खतरे में है। सुन रोबाम, खुदा नहीं चाहता कि तू अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने को निकले। खुदा नहीं चाहता? क्या मतलब बुजुर्ग समिया? उसका हुक्म है कि तुम बिल्कुल चढ़ाई ना करो और ना अपने भाइयों से लड़ो। ये क्या कह रहे हो समिया? उन्होंने तो इसराइल की सल्तनत के खिलाफ बगावत की है। ये सब कुछ खुदा की मर्जी से हुआ है रोबाम। रोबाम बादशाह, जो कुछ समिया ने कहा है नामुमकिन है। नहीं, ये सच है और खुदा की तरफ से है। तो क्या यह खुदा की मर्जी है? क्या इसराइल के 2 बादशाह हो सकते हैं? क्या इसराइल की सल्तनत बढ़ सकती है? बोलो, क्या खुदा की यही मर्जी है? सुन रोबाम, वो ना चाहता तो ऐसा कभी ना होता। खुदा ने यह फैसला आपके बाप सुलेमान के वक्त ही कर दिया था। अपने साथियों को फौरन हुक्म दो कि हर शख्स अपने घर को वापस लौटे। ओह बुजुर्ग समिया, क्या सचमुच खुदा का फैसला यही है? हाँ रोबाम, ये खुदा का हुक्म है। नहीं बादशाह सलामत, सल्तनत का क्या होगा? फौज तैयार है। ओह, ये क्या हुआ? बुजुर्ग समिया, अगर खुदा का यही हुक्म है तो ऐसा ही होगा। नहीं रोबाम बादशाह, हम तबाह हो जाएंगे। इसराइल का क्या होगा? ओह बादशाह सलामत। ये तो बहुत बुरा हुआ। खामोश बनाया और अजरिया, अगर इसराइल की तकसीम खुदा की मर्जी से हुई है तो फिर कत्लो गारत और खून बहाने का मुझे क्या फायदा? सब लोगों को हुक्म करो, अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। हम चढ़ाई नहीं करेंगे। यकीनन खुदा हमारे लिए बेहतरीन मंसूबाजात रखता है, लेकिन जब हमारे दिल खुदा से फिर जाते हैं और हम गुमराह हो जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए ही नुकसान और फंदे का बायस बनता है। ये थी आज के ड्रामे की 7वीं और आखिरी किस्त, और आइंदा हम किसी नए किरदार के हालात जिंदगी पर हम अपनी ड्रामा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आईना, और आईना के सामने हैं 2 बहुत ही मजबूत किरदार, एक है उन्स और एक वहशत। आइए मिलकर सुनते हैं कि इनमें क्या तू मैं हो रही है। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? अरे उन्स, तुम यहाँ शाम के वक्त इस बाग में? लगता है दुनिया ने धक्के मार मार कर निकाल दिया है तुम्हें। नहीं वहशत नहीं, मैं तो सैर के बाद यहाँ बैठकर लोगों की मदद करने का नया मंसूबा बना रहा हूँ। मदद करने का मंसूबा बना रहे हो? भाई वाह। लेकिन याद रखना, जब तक मैं दुनिया में हूं ना, तुम्हारे हर मंसूबे को खाक में मिलाती रहूंगी। अरे मुझे खाक में मिलाने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि सपने कांच के खिलौने होते हैं जिनको हर हाल में टूटना ही होता है। खिलौनों की बात करते हो? तुम तो खुद एक खिलौना हो जिसे लोग जज्बात की गिरौन में ठुड्डे मारते हैं। नहीं, ठुड्डे नहीं, वो तो ठाठ बार से मेरा इस्तकबाल करते हैं और अपने दिल में मुझे जगह देते हैं। अरे नहीं उन्स बाबा, नहीं, सब लोग नहीं, गिनती के चंद लोग कहो, गिनती के चंद लोग जिनका दिमाग चल गया है। शायद वो भी तुम्हारी तरह जज्बाती हैं। अरे वहशत बीबी, उन्हें जज्बाती नहीं बल्कि हसास कहो, हसास, क्योंकि वो दिल के नाजुक तारों पर दुखी इंसानों के दर्द को महसूस करते हैं। वाह भी वाह, दिल की बातें क्या खूब है। मगर तुम्हें बता दूं, दिल किसी का दोस्त नहीं होता। दिल तो दीवाना है, पागल है, और लगता है तुम्हारे दिल की दीवानगी का प्रेशर बढ़ गया है। वहशत बीबी, खुदा के लिए सारो कुर्बानी और जज्बा सादो को दीवानगी का नाम मत दो। ओए पोले बादशाह, किस दुनिया में रहते हो? एसार और कुर्बानी और जज्बा सादे का तो कब से जनाजा निकाला जा चुका है। जनाजा तो मादी और फानी चीजों का निकल सकता है, लेकिन रूहानी और नेक चीजों का वजूद खत्म नहीं हो सकता। और अब तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब मैं दुनिया में अपना वजूद फैला दूंगी ना, तो हर तरफ नफसा नफसी,
खौफ व हरास और हवानियत छा जाएगी, हवानियत। देख लेना। तेरे जैसे हवानों की हवानियत और तारीकी का दौर जितना भी तवील हो, आखिरकार उन्हें इंसानियत की रोशनी से शिकस्त खानी ही पड़ेगी। शिकस्त? हाँ, शिकस्त। मुझे कौन दे सकता है शिकस्त, तुम या तुम्हारे कमजोर साथी? मैं ताकत हूँ, ताकत। अपनी ताकत पर घमंड मत कर, क्योंकि हक के ताला को घमंड और बुरी राह से सख्त नफरत है। लेकिन जो नफरत की आग तुमने मेरे सीने में लगाई है ना, मैं उसी आग में तुम्हें भस्म कर दूंगी। तेरे ये बुलंदो बाला दावे रेत की कमजोर दीवारें हैं जो तुमसे हरफे गलत की तरह मिट जाते हैं। बस, अब एक भी लफ्ज मुंह से मत निकालना, नहीं तो क्या कर लोगी तुम मेरा? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं आ रही हूँ, छा जाऊंगी हर दिल और हर दिमाग पर। बचना है तो बच जाओ, क्योंकि मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? वहशत हमेशा से ही तबाही और बर्बादी का बायस हुई है, लेकिन उन्स और मोहब्बत के जज्बात बिगड़े हुए मामलात को भी बेहतर बनाते हैं। आज के सारे प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे और आपने सारे सेगमेंट्स को हमारे साथ मिलकर सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में यही कहना चाहेंगे, जैसा कि कलाम खुदा में भी लिखा है कि हम आने वाले कल के लिए फिक्र ना करें, बल्कि अपनी फिक्रें खुदावंद पर डाल दें। जो भी मुस्तकबिल को लेकर हमारे मंसूबाजात हैं, उनको हम खुदा के हजूर रखें, उनके लिए दुआ करें, कोशिश भी करें अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन मुस्तकबिल की फिक्र में अपने आज को बर्बाद ना कीजिए। आज भी उतना ही कीमती है जितना कि कल। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जाने से पहले हम हमेशा आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं। तो आइए चंद लम्हा दुआ में गुजारते हैं। ए खुदा ताला, शुक्रगुजारी करते हैं आपकी दी हुई तमाम तर नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, खास तौर पर इस नए साल के लिए और उन तमाम दिनों के लिए, उन हफ्तों के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिए। दुआ करते हैं अपने वतन अजीज के लिए कि ये आने वाला साल हमारे वतन अजीज के लिए खुशहाली, तरक्की और बहाली का बायस हो। जितने भी लिसनर्स प्रोग्राम राह जिंदगी को सुन रहे हैं, उनके लिए दरखास्त करते हैं कि उनके और उनके खानदानों के साथ होइए, उनको शख्सी तौर पर और खानदानी तौर पर अपनी तमाम बरकत से मालामाल कीजिए। ये दुआ मांग लेते हैं यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत दीजिए रीबा नईम को इस बात के साथ कि हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इजाजत दीजिए रीबा नईम को। खुदा हाफिज।